دین کی تعلیم سکھانے کے لیے اگر سب سے بہتر کوئی جگہ سوچنا ہے تو وہ ہے مدارس اسلامیہ۔ آج الحمدللہ ہمارے دونوں گاؤں میں مدرسے موجود ہیں۔ ایک مدرسہ پپلوتی کلام ہے، اپنے گاؤں میں مدرسہ ہے۔ یہ مدرسے وہ جگہ ہوتے ہیں کہ جہاں سے بڑے بڑے اللہ والے بن کے نکلتے ہیں۔ کبھی انہی مدرسوں سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے نکلا ہے، کبھی انہی مدرسوں سے کوئی امام ربانی مجدد الفسانی بن کے نکلا ہے، کبھی انہی مدرسوں سے کوئی صابر پاک بن کے نکلا ہے، کبھی انہی مدرسوں سے کوئی خواجہ غریب نواز بن کے نکلا ہے، کبھی انہی مدرسوں سے کوئی مفتی اعظم بن کے نکلا ہے، کبھی انہی مدرسوں سے کوئی اعلیٰ حضرت بن کے نکلا ہے۔ کبھی انہی مدرسوں سے حضرات دنیا اسلام کا وہ واحد عظیم رہنما امام ربانی مجدد الفسانی بن کر کے نکلا۔ لہذا حضرات میں آپ سے یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو اچھا بنانا ہے تو آپ انشاءاللہ انہی مدارس اسلامی پڑھانے کی کوشش کریں۔ اور ان کے برخلاف ان اسکولوں کالجوں سے حضرات پڑھنے والے تو نکلے ہیں، ڈگری والے تو نکلے ہیں، لیکن کبھی عمل والے نہیں نکلے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نہ جانے کتنی ڈگریاں رکھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس وہ ادب وہ احترام ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مدارس کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ موجود ہے اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے خوب بچوں کو پڑھانے کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور ہر طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مستقبل میں انشاءاللہ اس میں ہم آگے چل کے اس میں مولویت کی تعلیم بھی اور حفظ و قرأت کے ساتھ ساتھ اور بھی اعلیٰ تعلیم اور عصری تعلیم کمپیوٹر کا شعبہ بھی انشاءاللہ اس میں ہم بہت جلد داخل کر دیں گے۔ اور آپ کو خوشی کی بات بتا دوں کہ ابھی پورے پپلوتی خرد و کلا کے اندر حضرات محترم لوگوں نے ترقیاں چاہے ٹریکٹر نکالنے میں کر ڈالی ہو، چاہے زمینوں کی جائیدادوں کی کثرت میں کر ڈالی ہو، لیکن حضرات ابھی تک پپلوتی خرد و کلا میں یہ امام ربانی کا فیضان ہے کہ الحمدللہ جو الجامعۃ الاحمدیہ سے منسلک ہو گئے ہیں، جو امام ربانی کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، آج ان کے کرم سے ان گاؤں کے اندر الحمدللہ ایک نہیں بلکہ چار عالم دین پیدا ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، تیرے طریقت، عارف باللہ، حضرت علامہ مولانا ضیاء القمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امام ربانی کا خاص کرم ہے، ہمارے پیر و مرشد کی عطا ہے۔ میں قنوج سن 2003 میں گیا تھا، اس وقت کوئی زیادہ قنوج سے واقفیت لوگوں کو نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ پورے علاقے میں قنوج کا نام آتے ہی لوگ پہچان جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پورے علاقے میں جیسے ہی قنوج کا نام لیا جاتا ہے ویسے ہی امام ربانی کا روزہ یاد آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قنوج کسی فارمیلٹی کا نام نہیں ہے بلکہ قنوج مرکز اسلام کا نام ہے۔ حضرات محترم اسی لیے آج پورے علاقے میں چاہے وہ علماء کا اسٹیج ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی اسٹیج ہو، الحمدللہ وہاں تک قنوج کی آواز پہنچ چکی ہے، اس لیے کہ وہاں سے عظمت رسالت کے ڈنکے بجتے ہیں، وہاں سے میرے نبی کی سنتوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہاں سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو حضرات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج انہی کا فیضان ہے۔ پچھلی سال ہمارے حضرت پیر و مرشد تشریف لائے تھے تو انہوں نے مدرسے کا افتتاح کیا، حالانکہ مدرسہ پہلے سے چل رہا تھا، لیکن میں نے کچھ ایسے سرپسندوں کی باتیں سنی کہ جنہوں نے ہمارے گاؤں کے اتحاد میں انتشار کرنے کی کوشش کی اور اب پھر وہ دوبارہ سے ایسے انتشار کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ادارہ ہے اور ادارہ پہلے سے چل رہا ہے، ایک نہیں دو ادارے ہیں، اور ہمارے ہاں اگر اس سے بھی زیادہ لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب اگر اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرے ادارہ نہیں بلکہ وہ ایک انتشار اور افتراء کا اڈا بنانا چاہتا ہے تو حضرات اس تمام برائیوں کا ہونے والی مستقبل تمام خرافات کا وہ اکیلا ہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ہمارے گاؤں والے اس بات کے کبھی پابند نہیں ہیں کہ کوئی آدمی بلا کسی سیاست کے ذریعے سے یا کسی بھی پولیٹکس آدمی کے ذریعے سے یا کسی بیرونی مدد کے ذریعے سے یہاں ادارہ کوئی قائم کر کے ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ انشاءاللہ امام ربانی کے فیضان سے وہ کبھی بھی یہاں پنپ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں
कामयाब नहीं होते। हजरात, मैं और आपको ये बताना चाहता हूँ, अब तक उन्होंने जमातों के जरिए से यहाँ पर कामयाब होने की कोशिश की, लेकिन हजरात मोहतरम इमाम रब्बानी का नाम एक तरफ रहा और एक तरफ उनकी जमात रही, लेकिन उनको कामयाब न कर सके। हजरात, हम जमातों के नाम पर या हम चिल्लों के नाम पर किसी को नमाजी नहीं बनाते हैं, बल्कि हम अपने नबी के नाम पर लोगों को नमाजी बनाते हैं। उजहारी और गुरावली गंगवार के नाम पर नहीं, बल्कि हम अपने नबी के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं। और आजाद, हम किसी की सरकारी मदद पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने सरकार की मदद पर भरोसा करते हैं। ये बात अपने वहम गुमान से वो लोग निकाल दे कि जो सोच रहे हैं 2 बीघा या 4 बीघा जमीन में हम अपना अड्डा बना कामयाब हो सकते हैं। अगर उनके जराए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद का एक ऐसा दामन है कि जिसमें बड़े बड़े लोग आकर के भी छुप जाते हैं, उनके लिए भी ये दामन हजरात बहुत खुला हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने दिल में ये बात पैदा न करें, जो लोगों ने ये वहम डालने की कोशिश की है कि यहाँ एक बड़ा मदरसा खुलेगा और उसके जरिए से बड़ा काम होगा। अरे अगर वो उस मदरसे को खोल करके एक हाफिज बनाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लामातुल अहमदिया के जरिए से हम इंशाअल्लाह इसी गांव में 100 हाफिज बना देंगे, कारी बना देंगे। इस जगह को लोग विप्लवती के नाम से नहीं, बल्कि मदीनतुल उलमा के नाम से इस जगह को लोग आलिम और हाफिजों का और सुन्नियों का मरकज कहा। आज सबके लिए विप्लवती कांटा बनी हुई है, खास तौर पर इन तबलीगियों के लिए, इसलिए कि यहाँ हिंदुस्तान का वो अजीम अल्लाह का वली तशरीफ लाता है कि जहाँ वो पहुँच जाता है वहाँ से बातिल छटता चला जाता है, चला जाता है। जहाँ उसके कदम पड़ जाते हैं हजरात मोहतरम लोग वहाँ से उखड़ने लगते हैं। यही वजह है इन लोगों ने पहले ये मिशन बनाया था कि मस्जिद, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तो मदरसा, ये चाहे जितने हथकंडे, इनका कोई भरोसा नहीं होता। कभी मस्जिद का नाम, कभी मदरसे का नाम, और नाम चेंज कर दे तो धर्मशाला भी ये कर देते हैं। ये जहाँ जहाँ जैसे होते हैं, जिधर देखा वैगन उधर ही बदल जाता है, जैसी थाली देखी वैसे ही पलटा खा लेते हैं। हजरात मोहतरम, आज कभी सभा में, कभी बसपा में, कभी ये इनका यही काम होता है, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ। नहीं नहीं, इसकी परवाह है कि हम गैरों के यहाँ खा रहे हैं, नहीं गैर मुस्लिमों के यहाँ खाने और पीने में कभी शर्म महसूस होती है, लेकिन हम गुलामान नबी हैं, हम गैरों के नहीं यहाँ खाते हैं। गैर हमारे यहाँ खा लेते हैं, लेकिन हम वफादारान नबी हैं, दूसरों को खिलाना जानते हैं, किसी के दर पर टुकड़ों की मोहताजी नहीं जानते। लिहाजा मैं बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन ये कुछ चीजें थी जिनको बताना चाहता हूँ। एक लोगों में बिला वजह का ये लोगों ने ख्याल पैदा कर दिया था कि यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर ये कुछ करते भी हैं तो इंशाअल्लाह हम गुलामान मुजद्दिद किसी से डरते भी नहीं है। करके तो देखें इंशाअल्लाह इस गांव से। अभी तो एक देख रहे हो, इसी साल वार्ड लेवल की सबसे बड़ी हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 1 और 2 नवंबर को, जिसमें टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूरोप और मगरबी तमाम ममालिक के ऐसे ऐसे मशाइख जिन्हें लोग देखने के लिए तरसते हैं, कन्नौज के स्टेज पर जमा होंगे और उन पर पिपलोती के एक नौजवान के सर के ऊपर वो सरताजे फजीलत रखा जाएगा, वो ताजे फजीलत रखा जाएगा कि अब तक की सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली देवबंद की किसी तारीखी इज्तिमा के अंदर ऐसा कोई ताज न रखा गया था जो पिपलोती के एक नौजवान के सर पर रखा जाएगा। ये कमाल, ये फैजान उसी इमाम रब्बानी का है मोहतरम, जिसके नाम से कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ, आप भी अपने अंदर जज्बा पैदा करें और इंशाअल्लाह अज़ीम आप देखेंगे कि हर साल इसी गांव से, और इसी गांव से नहीं, हसनपुर क्षेत्र के हर गांव से और हसनपुर के हर महल्ले से इंशाअल्लाह कोई न कोई हाफिज, कोई न कोई आलिम, कोई न कोई कारी जरूर पैदा होगा और वो इमाम रब्बानी और इमाम मोहम्मद रजा का फैजान लोगों को तक पहुंचा देगा। ये जितना बौखलाएंगे इतना ही इंशाअल्लाह हम अपने दीन को फैलाएंगे, मिशन को पहुंचाएंगे। आप इसकी कभी परवाह न करें, इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत जल्दी मैं लाया अमल तैयार करके, और यहाँ पर अपना जो मदरसा है इंशाअल्लाह बहुत ही मदरसा मुजद्दिदिया गुलशन आफाक इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी तरक्कियों की तरफ गामजन है, और बहुत जल्द आपके सामने आप देखेंगे कि नई नई चीजें इंशाअल्लाह उसके जरिए से आप तक पहुंचा दी जाएंगी। कोई भी आदमी उनके बहकाने आने की कोशिश न करे। कोई कहे साहब यहाँ मदरसा खुला, हमारे यहाँ पढ़ाओ, तुम कहो भैया हमारे यहाँ पहले से खुला हुआ है, यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आओ, हम यहीं पढ़ा देंगे।
समझ रहे ना आप? जी जी हाँ, तो इस चीज की कोई परवाह ना करे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अगले साल या अभी एक की फजीलत की दस्तार होगी, फिर उसके बाद एक आलिम की होगी। 10 साल में जाकर के एक आलिम तैयार होता है, लेकिन अब ऐसा सिलसिला जुड़ गया है कि हर साल इंशाअल्लाह एक आलिम होगा। ये 10 साल में 10 नहीं बना पाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम 10 साल के अंदर सैकड़ों यहाँ बना देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। लिहाजा बस मैं मेरे अजीज और हमारे खास मेहमान बहुत ही अहम मुकर्रिर तशरीफ फरमा है। मैं अपनी बात को मुबालगा न करते हुए आखिर में आपसे अर्ज करूंगा कि आप भरपूर तरीके से उलमा अहले सुन्नत से जुड़े रहें और किसी भी बातिल ताकत से कभी घबराए ना। हमने हर जगह बातिल ने हर जगह कोशिश की है दबाने की, लेकिन इंशाअल्लाह कभी किसी से दबे नहीं है। किसी भी इंतशार की कोशिश न करें। आप देख रहे हैं लोग जमातों की बात करते थे, हमारे यहाँ काफिले आने लगे, काफिले में जाके लोग उनकी इस्लाह होने लगे। किसी की जमात की जरूरत भी नहीं है और किसी के इदारे की जरूरत भी नहीं, सब कुछ अपने पास मौजूद है। जब तुम्हारे पास अपना परमानेंट माल मौजूद है तो रेडीमेड की क्या जरूरत है? बेशक देखते नहीं हजरपुर में जो ठेले चलाते हैं वो दिन भर तो ठेला चलाते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर वही आगे तबलीग करते हैं। उनका कोई मयार है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो काफिले में गए थे 40 दिन के चिल्ले में नहीं गए थे, सिर्फ ताकत 3 दिन के लिए गए थे। आज उनके चेहरे पर दाढ़ी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो दाढ़ी रखा करके सुन्नत नबी में बिल्कुल ढल करके और आज मस्जिदों के नमाजी बन चुके हैं। लेकिन ये हसनपुर के आने वाले ये रोजाना आ करके हर तीसरे दिन यहाँ मस्जिदों में बैठ करके रह करके मस्जिदों की तौहीन और उनके एहतराम को पामाल करने वाले आप सब लोग जानते हैं। बाजार जाते हैं, देखते नहीं है, यही ठेले चलाते हैं, झूठ बोलते हैं, हर तरह की बुराइयों का ये शिकार होते हैं और फिर भी सुधरते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मुर्शिद का फैजान है, जब से हजरत तशरीफ ला है बिला मुबालका में बता रहा हूँ आपको कि कितने बेनमाजी थे जो नमाजी बन चुके हैं, कितने बेदाढ़ी वाले थे जो दाढ़ी वाले बन चुके हैं। लेकिन अब तक के हमारे गांव के वो हाजी भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका पाजीपन नहीं गया है, अभी तक उनके अंदर सुधार नहीं हुआ है, अभी तक उनकी इस्लाह नहीं हो चुकी है, अभी तक उन्होंने दाढ़ी नहीं रखाई है। लेकिन हमारे पीर मुर्शिद के दामन से जो वाबस्ता हो गए हैं, आप कितनों को मैं गिना सकता हूँ। आप खुद देख रहे हैं कि उनके चेहरों पे दाढ़ी भी आ चुकी है, मस्जिदों के नमाजी बन चुके हैं। इससे पता चलता है कि हर हक हुआ करता है, बातिल झूठा हुआ करता है। हक आया, बातिल गया और बातिल को बेशक मिटना ही था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीम आप कभी मत घबराइए और इंशाअल्लाह हम कामयाब होते चले जाएंगे। मेरी धमकियां दी थी, कोई गोली मारने की धमकी दे रहा है, कोई किसी चीज की धमकी दे रहा है, लेकिन इमाम रब्बानी का फैजान बढ़ता चला जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीजें क्या लोहो कलम तेरे हैं। किसी चीज की परवाह मत करो, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखो, चाहने वाले मोहब्बत रखो। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना मजमा यहाँ मौजूद है। कभी यहाँ चंद आदमी नहीं इकट्ठा होते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तादाद मौजूद। ये जरूर है ये पैसे का जरूर जोर दिखाएंगे, लेकिन हमेशा कभी पैसे वाले कामयाब नहीं हुआ करते हैं। हमारे इमाम रब्बानी ने अकबर जैसे लोगों को उखाड़ के फेंक दिया। जब वो न रहे तो हजरात ये इनके चेले और चमचे क्या रह सकते हैं। इमाम रब्बानी गुलाम तब भी थे, आज भी है। अरे ये इमाम रब्बानी का फैजान है कि आज दिल्ली का लाल किला भी राष्ट्रीय ध्वज लहराता है तो हिंदुस्तान को ये बताता है कि जब तक के इमाम रब्बानी का फैजान रहेगा तब तक हिंदुस्तान का ये लाल किला भी महफूज रहेगा। ये हमारे इमाम रब्बानी का फैजान है और जब तक के इमाम रब्बानी का फैजान रहेगा विप्लवी खुर्दो कला से कोई कुछ नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह यहाँ ऐसे उनका फैजान जारी है। आज आप देख रहे हैं विप्लवी और हरियाणा से, आज आप देख ले अल्हम्दुलिल्लाह हरियाणा से भी तकरीबन 3 या 4 आलिम इंशाअल्लाह आइंदा साल तक वहाँ से फारिग हो जाएंगे। 2 की तो अभी बिल्कुल करंट इंशाअल्लाह दस्तार हो जाएगी और बहुत ही अहम वो लोग इंशाअल्लाह यहाँ के पढ़ने वाले जामे अजहर मुस्लिम यूनिवर्सिटी दीगर यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल कर रहे हैं। किसी चीज की भी परवाह नहीं करना है। इंशाअल्लाह हमें सिर्फ अपने पीर और मुर्शिद का गुलाम बन करके उनके दामन से वाबस्ता रहने की जरूरत है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। देखते नहीं हो यहाँ मुफ्त के मुफ्ती हैं जिनके पेट तो बहुत बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी हकीकत पब्लिक को खूब मालूम हो चुकी है। कहीं वो कुछ करते हैं तो कहीं वो कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पीर और मुर्शिद का करम है कि हज़रात